प्रारंभिक परीक्षा अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से की है और उसके बाद मैंने अपने पास की तहसील आरोन तहसील से अपनी 12th तक की एजुकेशन पूरी की और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इंदौर के श्री अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय से पूरा किया है। और इस वर्ष चयनित होने पर मैं बहुत ही खुश हूँ और उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस यात्रा में सहयोग किया। My success story is not just mine. It is the success story of so many other people who have contributed to my journey, which includes my parents, my sister, my family, friends, teachers, etc. Their support and my belief in myself and a positive attitude have gotten me where I am. My success story has been about believing in yourself and never ever doubting your ability in comparison to others. I belong to a very humble background. My mother is an Anganwadi Sahayika and my father is a private lawyer in a lower court. My education background is also very ordinary when compared to my peers. Never doubt yourself. Give your 100% and you will be successful. हमने रोशनी उगाई है, मेहनत अपनी रंग लाई है, उजला सवेरा लाने को अपनी तैयारी में मैंने सोर्सेज को लिमिटेड रखने और रिवीजन पर ध्यान दिया था और आगे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप फोकस्ड रहकर अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहें और हमेशा खुद पर भरोसा करते रहें। To future aspirants, I would like to say, your goal should be that you are satisfied with your preparation. Try to be consistent, composed, and confident in your preparation. Do not be deterred by luck being a significant part of this process. As my mathematics professor used to say, work hard to give your luck a chance in life. Have faith in your capability and capability of human spirit and work toward being the best version of yourself. A little bit about my journey. I decided to appear for this exam in mid-2018. My sister was still preparing. She's a 2019 batch IPS officer and she was my main inspiration why I wanted to come to this field. And the other reason being that I felt really strongly about women's safety. And so this was something that I felt really strongly about. And then I started preparing. She gave me some tips. मैं भविष्य के सिविल सेवा अभ्यर्थियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सिविल सेवा में आने का अपना आप मोटिवेशन क्लियर रखिए। जैसे मेरा ये मोटिवेशन था कि मैं जिस दिन चयनित होऊंगा मैं समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं आम आदमी के लिए जो उनकी बेसिक समस्या हैं उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ आप भले ही आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि मेरे पिताजी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, मेरी माता जी गृहिणी है और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी साधारण सा रहा है। मैंने BA किया है अरिहंत कॉलेज इंदौर से। तो आप अपने बैकग्राउंड को ऑब्स्टिकल बनाते हुए अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। And I owe my success to my family and friends, also to my mentors and seniors who have supported me throughout. I would like to thank Madhya Pradesh government for this felicitation event and honor. सच्ची मेहनत और अनुशासन तथा निरंतर की गई मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और उसी से मुझे यह सफलता अर्जित हुई है। मेरा मानना है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है कि स्पष्टता होनी चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा या अन्य किसी भी परीक्षा के लिए हमें उस परीक्षा के पाठ्यक्रम, पिछले सालों में पूछे हुए प्रश्न पत्र, नोट मेकिंग, पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन तथा अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बस मेहनत करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। My message to all the future aspirants is to have faith in yourself. Do enjoy this process. It will teach you a lot of the things. It will teach you humility. It will teach you perseverance. It will teach you a number of things which will be useful in the later half of your life. And with this, I would like to extend my best wishes to all the future aspirants. मेरी सिविल सेवा परीक्षा की कहानी शुरू होती है मेरे नौकरी के दिनों से। जब मैं गुड़गांव में नौकरी करता था तब मेरे दोस्त दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे। मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता था और उनसे जो बातें करता था कि जो समझ से मैं समझता था, वहां से मुझे यह लगा कि जो सिविल सेवा है, जो भारतीय सिविल सेवा है, उसमें जाके कुछ बदलाव लाया जा सकता है। उसमें जाके मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ अपने देश के लिए। तो वहां से जो मेरे को प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा को लेते हुए मैंने मेहनत करी और उस मेहनत की सफलता आज मेरे सामने है। I believe UPSC is a journey in itself with its own share of ups and downs. However, it's a test both of knowledge and your values. If you have a strong purpose in mind as to why you're entering the civil services, if you put in right amount of effort,
and have right strategy in place, success shall be yours. This was my mantra for achieving this rank, and I'm wishing all the very best to all the future aspirants. आशाओं के आकाश में, मंजिलों की राह में, सपनों के पर लगा उड़ चले। मेरी समझ से यदि आपको कोई भी पड़ाव अपनी ज़िंदगी में पार करना है तो आपके लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए। वो प्रेरणा आपको लगातार आपके लक्ष्य के लिए पुश करती रहेगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूपीएससी देश की कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है, परंतु परिश्रम, सही मार्गदर्शन एवं प्लानिंग के बूते पर इसे उत्तीर्ण किया जा सकता है। इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखने लायक है, जैसे अपने ऑप्शनल विषय का चयन सावधानी पूर्वक करें। छात्रों से मेरा निवेदन है कि वे घर बैठे भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ऑनलाइन कई सारा मटेरियल उपलब्ध है, परंतु इसका चुनाव सावधानी पूर्वक एवं बुद्धिमत्ता के साथ करें। रोजाना पढ़ें, जितना पढ़ें फोकस और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ें। रिवीजन करते रहें। यूपीएससी डायनामिक होता जा रहा है, परंतु परिश्रम करते रहें, फल की चिंता ना करें, परिणाम की चिंता ना करें और धैर्य बनाए रखें। मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसको आप अच्छे से समझ पाएँ और उसके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विथ थोड़ा पेशेंस अगर आप रख सकते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ भी रोक नहीं सकता इस एग्जाम को क्लियर करने। I would say that the success is nothing but a culmination of many failures that you see, and never losing hope in life is the key to success. And you should have faith in yourself, in your capabilities, and have faith in God as well. Sometimes the Almighty has better plans for us than we can ever imagine. So with that, I wish you all the best. आजकल सी ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है, हर जगह एक समुद्र हो गया इंफॉर्मेशन का। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलेगी, तो एक राइट स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। आप टॉपर्स की वीडियो देखिए और उनको कंसोलिडेट करके अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए जो कि इम्प्लीमेंट कीजिए। उससे आपको सफलता मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। बाकी आपको अभ्यास जितना हो सकता है उतना करना ही है। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। मेहनत अपनी रंग लाई है। बड़ी उपलब्धियां, बड़ी जिम्मेदारियां भी लेकर आती हैं। आज यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले प्रतिभागियों को कल बड़े उत्तरदायित्व निभाकर देश और प्रदेश के विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। आप सभी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश और देश सेवा में मिसाल प्रस्तुत करें। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। उड़ चले